غیرہ۔ برادران عزیز اور عزیزان محترم، مولانا حجت الاسلام مولانا قلعہ حسین صاحب اللہ ایک پروگرام کے تحت مجبور ہیں، انہیں جانا ہے۔ اس بنا پر میں تو آیا ہوں، لہذا ان کے احتجاج اور معیار بندی کو پیش نظر رکھ کر کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے بتا دوں کہ عرب اور ایران میں ایک دستور ہے، ادھر کھانا آتا ہے تو کھانا کھانے سے پہلے وہ لوگ زیادہ سے زیادہ سلاد کا انتظام کرتے ہیں اور سلاد کھاتے رہتے ہیں۔ ان سے پوچھے کوئی کہ تم سلاد کھانے سے پہلے کیوں کھاتے ہو، تو کہیں گے سلاد کھانے کے بعد بھوک زیادہ لگتی ہے، لہذا سلاد کا انتظام تو میں کر رہا ہوں، کھانے کا انتظام جو ہے وہ مولانا رضا الاسلام صاحب کریں گے۔ تو بھی آپ نے جو الفاظ و فضلات سماعت فرمائے ہیں، اس کا تعلق قرآن مجید سے بھی ہے اور دعا سے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو ہر کام انجام دے سکتا ہے، ہر کام کر سکتا ہے۔ بڑا جب کرو ما یشاء غیرہ، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ہر کام انجام دے سکے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ خدا کے کام اور ہیں، اور خدا جو کام کر لیتا ہے اس کے علاوہ جو کام ہے وہ اللہ کے بندے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے بندے سب نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے جو قرآن مجید نے کہہ دیا ہے، سورۃ صف میں آپ کو ملے گا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، ایسی بات کیوں کہتے ہو تم لوگ جو تم خود اس کو انجام نہیں دے سکتے ہو، جو تم کر نہیں سکتے ہو۔ تو جو کر سکتے ہو کرو، اور جو نہیں کر سکتے ہو زبان سے مت ادا کرو۔ جو کر سکتے ہو اس کے لیے پیچھے مت رہو، اور جو نہیں کر سکتے ہو اس کے لیے آگے بڑھ رہو۔ اب کر سکتا ہے کون؟ ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے لیے بھی نبی نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، ہمارے امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے جیسے ہیں، یعنی انبیاء وہ ہیں کہ جو اللہ کے چھوڑے ہوئے کاموں کو یا اللہ نے جو اختیار دے رکھا ہے انہیں وہ انجام دے سکتے ہیں۔ اب اسی بات کے اوپر قرآن مجید پھر آواز دے رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان مبارک وہ ہے، رمضان مبارک کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ نے بتایا ہے کہ رمضان صرف رمضان نہیں ہے بلکہ اس میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے، لہذا یہ لازم اور ملزوم ہے۔ رمضان اور قرآن، اگر رمضان ہے تو قرآن بھی ہے، اور اگر قرآن ہے تو رمضان بھی ہے۔ حالانکہ نبی نے فرمایا ہے کہ انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ وسنتی اہل بیتی، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میرے اہل بیت، میری عطر۔ لہذا رمضان مبارک میں قرآن کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور عطرت کو بھی یاد رکھنا چاہیے، قرآن کو بھی یاد پڑھنا چاہیے اور عطرت کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے۔ لہذا اس سلسلے میں یہ کام علماء کرام زیادہ بہتر طور سے انجام دے سکتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ چند نکات ہیں جو ترغیب میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا نقطہ یہ ہے عزیزان محترم کہ بیماریوں کی جڑ اور بیماریوں کی ماں ام الامراض الامعاء، بیماریوں کی جڑ اور کیا چیز ہے؟ بیماریوں کی اصل معدہ ہے۔ ام الفجور ام الفسوق الغیبہ، اور فجور اور فسوق کی جڑ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ ایک دوسرے کے خلاف بولنا ہے، ایک دوسرے کے خلاف اپنی نشستوں میں بیٹھ کر کے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں چند مسائل کہ نبی کریم کے سامنے ایک شخص آیا اور وہ کسی کو گالی دے رہا تھا، تو نبی نے فوراً کھانا پیش کر دیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو کھانے سے کھا، میں تو روزے سے ہوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا
ही तो रोजे से नहीं है। इसलिए कि रोजा इसके माने नहीं है कि तो दूसरों को गाली देता रहे, दूसरों की ग़ीबत करता रहे, दूसरों की बुराइयां बयान करता रहे, आंखों से गुनाह करता रहे, ज़बान से गुनाह करता रहे, पैर से गुनाह करता रहे, हाथों से गुनाह करता रहे, अपने अमल से गुनाह करता रहे। नहीं, बल्कि रोजा है पाकीज़ा अमल का नाम है। ये जिसके बाद अल्लाह ताला आप तवज्जो फरमाएं, अल्लाह ने किसी अमल में ऐसे ही नहीं जो है अज्र मुकर्रर फरमाया है। आपने रिवायतों में पढ़ा होगा कि 27 रजब का रोजा रसूलुल्लाह ने फरमाया, हमारे इमाम ने फरमाया 27 रजब का रोजा 1 लाख रोजे के बराबर है। तो मानी क्या होगा? मानी ये वो इंसान उस दिन कम से कम अपने को इतना पाकीज़ा बना लेता है कि अल्लाह ताला जो है उसने जो काम नहीं किया है उसका भी सवाब उसको अदा कर रहा है। तो जो काम हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। तो जब कुरान लाजिम मज़लूब है माह मुबारक से मुताल्लिक, तो लिहाजा उलमा का फर्ज है दीनार मोहतरम कि अपने दरमियान रहते हुए कुछ लोगों को खुद भी तैयार हो जाएं और दूसरों को भी तैयार करें। कुरान कम से कम एक सूरा भी, एक आयत भी अगर पढ़ा देंगे या याद करा देंगे तो उनकी जिंदगी के लिए बेहतरीन अमल बन जाएगा, बेहतरीन सूरत बन जाएगी। आप तवज्जो फरमात पर आपके सामने पेश करो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक उस्ताद के पास अपने बेटे को लेके गए और कहा, उस्ताद मेरे बेटे को तालीम दे दे। तो उस्ताद ने कहा, फर्जंदे रसूल मेरी क्या मजाल है तो मैं आपको तालीम, आपके बेटे को तालीम दे सकता हूँ? इमाम हुसैन सर ने फरमाया, नहीं, मैं जानता हूँ जो मकाम हमको हासिल है तुझे हासिल नहीं है, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि उस्ताद का क्या मकाम है, उस्ताद किस हैसियत का मालिक है। लिहाजा जब उस्ताद ने सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा लिया इमाम हुसैन इस्लाम ने फरकत को, तो इमाम हुसैन इस्लाम ने इतनी दौलत उसको दे दी और कहा कि मेरे पास इससे ज्यादा भी नहीं है, मगर और भी मैं तुझको अता करता। तो आप उस्ताद का मर्तबा समझ लीजिए, पढ़ाने वालों की शान देख लीजिए। लिहाजा कम से कम आप हजरात जो बात कही गई थी कि तजवीज़ के जरिए कुरान आप सिखाएं, तो यकीनन आपको तजवीज़ के साथ बैठे हुए खाली वक्त में आप जो है ऐसे अपने वक्त को ज़ाया करते रहते हैं, खाली वक्त में बेकार इधर से उधर बातें करते रहते हैं। काम कीजिए, कुछ काम करके दिखाना होगा। और इस वक्त जरूरत की तहत देखिए तबलीग जो है वो 2 किस्में हैं। तबलीग के 2 अंदाज है, एक मिंबर से तबलीग की जाती है और एक तहरीर के जरिए से। मिंबर वाली तबलीग जो है वो वक्ती होती है और पादरखा होती है, और तहरीर वाली तबलीग जो है वो बहुत ही मुस्तहकम होती है, पायदार होती है, हमेशा रहने वाली होती है, नक्श पर आव नहीं होती है, बल्कि नक्श बस होती है वो जो पत्थर के ऊपर नक्श बन जाती है। लिहाजा हज़रात को बेकार टाइम नहीं गुजारना चाहिए। जो लोग साहिब फहम हैं, जो दानिशवर हैं, जो साहिब फिक्र हैं, उनका काम ये है कि वो बंगला में तर्जुमा करते रहे, बंगला में किताबें लिखते रहे, तर्जुमे का काम करते रहे। अगर कुछ न हो सको एक आयत का तर्जुमा करें, अगर कुछ न हो तो एक हुक्म इलाही का तर्जुमा करें, बंगला में एक मसला बयान करें और बंगला में लिखा करके उसको तकसीम करें ताकि जाहिल लोगों तक जो है वो बात पहुंच जाए। दूसरा नुकता ये है अज़ीज़ान मोहतरम कि जो काम हमसे नहीं हो सकता है, हम साफ साफ कह देते हैं कि ये काम हमसे नहीं हो सकता है। लिहाजा जो काम अगर कोई अंजाम देता है तो उस सिलसिले में उसकी मदद करनी चाहिए। ये हकीकत है अज़ीज़ान मोहतरम कि 172 तारुफ ताबूत शरइया का वो बंगाल की एक अलामत कर चुका है और सारे हिंदुस्तान में बड़ा नाम कमाया है। लिहाजा जब ये बंगाल की इलामत निशाने पर गई है तो आप हजरात का फर्ज है कि आप हजरात इसमें दामे दाने कलमे सोहने हर तरह से ताउन आपको करना चाहिए। उसकी मुखालफत जो है वो आपके लिए जायज़ नहीं है। और फिर इस सिलसिले में तबलीग के सिलसिले की बात आगे बढ़ाते हुए अर्ज़ करूं अज़ीज़ान मोहतरम, अगर तालिब इल्म के जो बैठे हुए हैं
सबके वक्त एक जमाने में तालिब इल्म थे, एक जमाने में खेलने वाले बच्चे थे, आज माशाल्लाह सबके सरों के ऊपर इमामे आ गए हैं। आज इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग इमाम जुमा हैं, बहुत से लोग आइम्मे जमात हैं, बहुत से लोग इसमें खलील हैं, बहुत से लोग इसमें जो है अहले तलब हैं। मौलाना हसन रजा साहब को अल्लाह सलामत रखे, मौलाना बहादुर साहब को, मौलाना अबू तालिब साहब को अल्लाह सलामत रखे, राजा साहब हैं, ये लोग काम कर रहे हैं। ये लोग किताब तहरीर का काम कर रहे हैं, अहादीस पेश कर रहे हैं, अहादीस के तर्जुमे पेश कर रहे हैं। तब आप ये काम कर रहे हैं तो दूसरे अफराद को भी ये काम करना चाहिए, दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ करके तबलीग के काम को अंजाम देना चाहिए। अजीज़ान मुहर्रम, इस सिलसिले में तबलीग का काम उसी वक्त बढ़ेगा जब हम मदरसों को तक़वियत देंगे, जब हम मदरसों को मजबूत बनाएंगे, जब औलाद को हम आगे बढ़ाएंगे। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आक़ाए सैयद फिरोज हुसैन ज़ैदी साहब ये बात कही है कि आप अपने आप हज़रात में देख रहा हो, आप हज़रात इमाम जुमा भी हैं, आप हज़रात अइम्मा जमात भी हैं, आप हज़रात खतीब भी हैं, आप हज़रात जो है वो अपने इलाकों में एक मोतबर हैसियत के मालिक हैं। आप अगर चाहें तो अपने गाँव से उल्टे सीधे नहीं, ज़हीन और मेहनती, अभी मेरे पास कुछ ज्यादा लड़के जो हैं न तो वो ज़हीन है, न वो मेहनती हैं, न वो पढ़ना चाहते हैं, न वो इरादा रखते हैं, न वो पढ़ने का शौक रखते हैं। लिहाजा ऐसे लड़के जो ज़हीन भी हों और मेहनती भी हों और काबिल भी हों, उन्हें तैयार करके आप हज़रात भेजिए और उनके बाप को आप मतलब अच्छे कर दीजिए कि अगर तुम अव्वल क्लास में जो लड़का है वो व्यक्ति दाखिल हुआ है और उसको तुम 30,000 का मोबाइल देते रहे हो, तो ज्यादा बेहतर ये है कि मदरसे में जाने से पहले जब वो लड़का माँ के पेट में हो तो पेट ही में मोबाइल दे दिया करो तुम। तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और 30,000 का मोबाइल खरीद के दे रहे हैं, 40,000 का मोबाइल खरीद के दे रहे हैं बेटे को, और जिसकी वजह से न पढ़ पाता, फिर आखिर में आकर के वो वही रिक्शा चलाना शुरू कर देगा। सब्जी की लोट की छाबी जो है और टोकरी सबके ऊपर लेके जाता है, या कहीं जाकर के मुलाजमत कर रहा है, काफिरों के सामने जाके सब झुका रहा है, काफिरों के सामने जो है वो उसकी गालियां सुन रहा है। 10,000 दे देता है मगर दिल भर में कितनी गालियां देता है इसका कोई एहसास नहीं है। तो गाली सुनना अलग है अज़ीज़ान मोहतरम, और इज्जत के साथ और मोमिनीन के दरमियान कदम रखना और इज्जत के साथ जिंदगी गुजारना, ये जो है वो मदरसा आपको बता रहा है, मदरसा आपको राह दिखाता है, मदरसा जो है आपके लिए ऐसी इज्जत का सामान फराहम करता है। तो अज़ीज़ान मिल्लत, ग़ीबत एक बहुत बड़ी चीज है। बस अपना बात को खत्म करने जा रहा हूँ। ग़ीबत जो है वो उम्मुल फुजूर है और उम्मुल फुसूक है। हम देखते हैं कि आप खाली वक्त बजाय इसके कि आप किताब को तर्जुमा करें, बजाय इसके कि मोमिनीन के दरमियान मसले बयान करें, आप एक दूसरे की ग़ीबत करते नजर आते हैं। और ये बड़ी बीमारी फैली हुई है सारे हमारे मुआशरे के अंदर। सबसे बड़ी बात जो है वो ग़ीबत है। ग़ीबत इंसान को तबाह और बर्बाद कर देती है। ग़ीबत करने वाला समझता है कि हमारे दिल को सुकून मिल रहा है जो हम अपने मुखालिफ के बारे में बात कर रहे हैं या मुखालिफ के बारे में सुन रहे हैं, बड़ा लुत्फ आता है। ग़ीबत सुनते वक्त बहुत मजा आता है, लेकिन याद रखिए कि वो मजा जो है वो मजा नहीं है, बल्कि एक ज़हर हलाल है, एक सब्जेक्ट कातिल है, एक हलाक करने वाले मुहलिक है, जिससे हमेशा की तबाही है। अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया है, क्या तुम्हें ये बात पसंद है कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ? कौन ऐसा पसंद करेगा जो अपने मुर्दा भाई का गोश्त पसंद खाए? तो अल्लाह ताला ने पहले मुबारक कर दी है। लिहाजा ग़ीबत से आप हज़रात को परहेज करना होगा और काम करना होगा, काम करने के लिए आगे होना होगा। याद रखिए, कभी पैसे के ऊपर आप तवज्जो ज़्यादा नजर मत रखिएगा।
اگر پیسے پر آپ نے نظر رکھی تو اللہ تعالیٰ آپ کی آمدنی کو بند کر دے گا، اور اگر اللہ کے اوپر آپ نے نظر رکھی تو اللہ تعالیٰ آپ کی آمدنیوں کے راستے پیدا کر دے گا۔ لوگ جو ہیں وہ محبت کے زمانے میں طے کرتے ہیں، ہم کو 50,000 چاہیے، ہم کو 60,000 چاہیے، ہم کو 1,00,000 چاہیے، جب تک یہ نہیں دو گے ہم نہیں آئیں گے، ہم کو فلاں جگہ اتنا ملا کرتا تھا، ملا کرتا ہے۔ تو اس طرح سے پیسے کے اوپر ہر وقت دوڑ چلے جا رہے ہیں، جبکہ پیسے کے لیے شاعر نے کہا ہے کہ یہ وہ ایسی میل ہے جس کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، یہ گندگی ہے، کبھی ان کے ہاتھ میں، کبھی ان کے ہاتھ میں، کبھی ان کے ہاتھ میں، کبھی ان کے ہاتھ میں جاتی رہتی ہے یہ۔ لیکن ہمارے جو صاحبان عزیز ہیں وہ اس پیسے کے لیے چاروں طرف دوڑتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، اسے ادا کے لیے طے کرتے ہیں۔ علماء نے فیصلہ فتویٰ دے دیا ہے، جو آزادی کے سلسلے کے دور میں مجلس حسین کے لیے طے کر کے پیسہ لے گا وہ پیسہ حرام ہے، وہ پیسہ ناجائز ہے۔ البتہ اگر کوئی خودی خود سے اپنی خوشی سے بغیر مانگے ہوئے، بغیر امید رکھے ہوئے، بغیر توقع رکھے ہوئے کوئی اگر دے دیتا ہے تو اسے دل و جان سے قبول بھی کر لینا چاہیے، اسے مسترد نہیں کرنا چاہیے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔